यूटीए वेस्ट बंगाल, यूटीए उड़ीसा, यूटीए मध्य प्रदेश, यूटीए गोवा, यूटीए आंध्र प्रदेश, यूटीए तेलंगाना, यूटीए कर्नाटका, ये राज्यों में रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रेनिंग जारी करा दी गई है। कोविड कोविड के लॉकडाउन के चलते यूटीए ने 3 फेजेस में पिछले 2 महीनों में आयोजित किए गए कुछ प्रोग्राम में से पूरे देश में 10,000 टीचर्स का पार्टिसिपेशन रहा है और उनको ट्रेनिंग दी गई है। 2017 से 2020 के तहत यूटीए ने अपने फेस टू फेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 900 टीचर्स या अध्यापकों को ट्रेनिंग दी, जिनके टॉपिक्स या विषय कुछ इस तरह के रहे हैं: इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ऑन प्रोजेक्ट प्रपोजल टू बी सबमिटेड टू एनसीईआरटी by teachers, workshop on videography, stop motion animation, MIT app inverter, how to submit research papers. पिछले वर्ष के आईसीटी मेला में यूटीए ने ऑल इंडिया वीडियो कंटेंट फॉर इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशन वीडियो एंड ऑडियो फेस्टिवल को एनसीईआरटी सीआईईटी ने आयोजित की थी। इस प्रतियोगिताओं में कुल 15 में से 6 पुरस्कार जो कि नगद इनाम थे वो यूटीए ने जीते थे। यूटीए का लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि हम पूरे भारत के टीचर्स और स्टूडेंट्स को आईसीटी और एफडीपी के क्षेत्र में मुफ्त ज्ञान प्रदान कर शिक्षण क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Thank you, madam. Thank you, Leena, madam, for briefing this regarding the UTA in Hindi. Thank you. Thanks a lot. Now, I request Mr. Asir Julius. Is a professor, assistant professor in SCRT, and he is the advisor of Universal Teachers Academy, and he is an expert in animation. He is an award winner of SEMCA. So I request our Dr. Asir Julius to give his keynote address for all the participants. Sir. Thank you, Mr. Srinivasan. Thanks for your wonderful info. And a very good afternoon to all. On behalf of UTA and as well as on personal behalf, I would like to welcome each and everyone by name to this wonderful 5-day program. And I am Dr. Julius, and I am a part and parcel of UTA. And I am also volunteering UTA for the past 5 years. So just like you, I was also newbie 5 years back, and now I have become an advisor. Okay, and we are as a family in UTA, we are very happy that till date that we've been taking trainings only to our local populations like Tamil Nadu and Pondicherry. And now I'm really feel great to reach even the remotest part of the India. So when I see the percentage of this registration, I was really overwhelmed that whenever we put on some Google form, people from all parts of the world, not only from Tamil Nadu, not from only from India, even from America, even from Malaysia, even from Singapore, we get registrations. It is really a wonderful experience, and I should really thank each and everyone, every participants in this arena. And along to this, I would like to say that this COVID period has also given us a wonderful learning, not only in computers, even in our personal lives as well. So we do all have a personal agenda that whatever the learning that we take from any source, let it be UTA or NCRT or anything, it has to be translated to the students community. And this is why the UTA comes into picture, where UTA has got a wonderful motto that is teach, train, and transform. Since we are all teachers, we should get to be taught from somebody else, and we need to get trained, and the same thing has to be given to the student community. And that's why we target only teachers and not students, because we believe that each and every teacher can transform 1,000 students. So you're all a part and parcel of UTA, and one kind request from UTA is that whenever you come across a program, try to tell the same program to your near and dears, so that each and every teacher will be getting benefited out of UTA.
So with this, I really thank and appreciate each and one of your involvement. And let us hope this 5 days would be a very useful one. And you might find that these are all simple tools, but this will give you a great leap in your teaching experiences. So ultimately, our classroom transaction will be very efficient, so that we teach for 10 days with the help of these simple and small tools. We'll take the 10-day class in 1 day. That is the ultimate gain. So be with us, help us, and be a part of our family, so that we can reach more and more community. So thank you all. Thank you once again. Thank you, UTA. And one more thing is, once after learning that we should reach North India, we also plan to learn Hindi. So we would like to thank you for giving us an opportunity to learn one more language. So not only UTA, you can also teach us. So thank you all. Have a wonderful session. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Nasir sir, for your wonderful keynote speaking. Thank you. Now I request Mrs. Cinderella Sandeep Demallo. She is an organizer of UTA Maharashtra, and she is the resource person for this today's session. Now I request her to start the session. Madam? Sorry, can you hear me? Yes, madam. I'll start. Yeah, I will make you host. You can start sharing your screen. Yes, sir. Yeah. Yes, madam. Okay, sir. Shall I start, sir? Yes, madam. Start sharing your screen. Yeah. Madam? Yeah, so it's taking time. I have selected the screen. No, you just click that share screen. Yeah, that I have clicked, sir, but it's just not taking. 1 minute. You share your desktop. पूरा है ये लोग की Yeah. नोट ऐसे वैसे एड्रेस एड्रेस करते हैं. अब जो शुरू करने वाली है सिंड्रेला डी मेलो, उसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. ये सिंड्रेला डी मेलो महाराष्ट्र की वो है, ये यूटीए की प्रेसिडेंट है, जो भी मेन क्या बोल रही हैं यूनिवर्सल टीचर एकेडमी है ना, टीचर्स को ट्रेनिंग्स देते हैं ऐसा. ये Yes. One second, please. We have some network issue. 1 second.
So, can you hear me? You can start sharing, madam. Yeah, I'm doing that. Sir. Is my screen visible now? Yeah, 1 second only. It started. Yeah. Yes, it looks dark. Madam? Yes, sir. Yes, you can start, madam. Screen sharing is paused. I'm getting the message, sir. No, you start sharing your screen once again. 1 minute, sir. Just give me 1 minute. Yes, madam. Now it's visible. Yes, madam. Yes. गुड आफ्टरनून टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यूटीए के तरफ से आप सबका स्वागत है ये कोर्स के लिए। आज पहला दिन है, डे 1। आज हम देखेंगे कॉपीराइट फ्री इमेजेस और साउंड्स कैसे ढूंढने हैं ऑनलाइन और कैसे डाउनलोड करने हैं। जब भी हमें कोई भी इमेज चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, पहले हम गूगल का सहारा लेते हैं। सर्च इंजन है ये। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे एक एप्पल का इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊंगी और मैं सर्च करूंगी एप्पल फ्रूट। ओके, सो एप्पल फ्रूट मुझे ढूंढना है। मैंने यहाँ पे टाइप किया एप्पल फ्रूट और मैं एंटर कर रही हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी हम स्पेसिफिकली इमेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मैं इमेजेस पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो इमेजेस, वहां पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख रहे हो बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे अपीयर हुए हैं एप्पल के, क्योंकि हमने सर्च एप्पल फ्रूट दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स आए हैं। अभी इनमें से जो कोई भी इमेज हमें पसंद है, मुझे अगर ये इमेज पसंद है और ये मुझे इस्तेमाल करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया है आप देख रहे हो इमेज ओपन हो गया है एक विंडो में। अगर मुझे ये सेव करना है, ये मुझे पसंद है और ये मुझे इस्तेमाल करना है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए छोटे विंडो में। उसमें से मैं करूंगी सेव इमेज एज ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। ये इमेज मुझे सेव करनी है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने थोड़ा टाइम लिया और मुझे और एक विंडो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि ये आपको कहाँ पे सेव करना है इमेज। मुझे ये इमेज डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। उसके बाद
उसका नाम क्या रखना है, किस नाम से, यहाँ पे कुछ अल्फा न्यूमेरिकल नंबर आप देख रहे हो, मुझे इसे नाम देना है न्यू एप्पल 1। तो मैंने उसको नाम दे दिया है न्यू एप्पल 1 और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगी ये सेव नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और आप देख रहे हैं वो विंडो अभी चला गया है और वो एप्पल सेव हो गया है। ये एक तरीका है जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और एक तरीका कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जल्दी जल्दी में, आप देखते ही आपको चाहिए होता है इमेज, आप वो इमेज के ऊपर ही राइट क्लिक करते हो, उसे आप ओपन नहीं कर रहे हो, वो इमेज वैसे के वैसे वहां पे है, आप वहां से ही उसको सेव इमेज एज ऑप्शन क्लिक करते हो। हम देखेंगे कि ये दो तरीके इस्तेमाल करने से क्या कोई डिफरेंस आ रहा है या सेम आपको आउटपुट आ रहा है। वापस मुझे ये डेस्कटॉप पे सेव करना है और मैं उसे नाम दे रही हूँ न्यू एप्पल 2 और मैं सेव क्लिक कर रही हूँ। दोनों इमेजेस सेव हो गई है। अभी आप देख सकते हो ये पहले वाला इमेज है जो हमने डबल क्लिक किया और दूसरा विंडो ओपन हो गया बड़ा सा और उसमें से हमने ये सेव किया है। ये एप्पल है। अगर मैं इसे जूम करती हूँ, बढ़ाती हूँ इसको साइज में, तो भी आप देख रहे हो इसकी क्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, ये ब्लर नहीं हो रहा है, ये इमेज बहुत या your screen is not, that image is not visible. Image is not visible, sir. You share your screen, the total desktop you have to share it. अभी विजिबल है सर? Yes, yes. तो ये एप्पल नंबर 1 है जो हमने डबल क्लिक करके ओपन किया था और बाद में सेव किया था। तो आप देख रहे हो क्लैरिटी बहुत ज्यादा है इसमें, और अगर मैं इसको जूम भी करती हूँ, इसका साइज भी बढ़ाती हूँ, तो भी आप देख रहे हो कि वो क्लैरिटी और क्वालिटी अच्छी है, वो ब्लर नहीं हो रही है। और जो हमने दूसरा एप्पल सिलेक्ट किया था, ये जो हमने ओपन नहीं किया था वैसे ही किया था, जो आप बड़ा करते हो तो आप देख सकते हो कि ये ब्लर हो रहा है, ये एजेस आप देख सकते हो कि ये इमेज क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है। तो ये दो तरीकों में आप डिफरेंस देख रहे हो। पहला तरीका जो हमने इमेज ओपन किया, पहले अलग से विंडो आया, उसमें से हमने सेव किया, वो वाला इमेज देखिए, और ये जो सेकेंड इमेज है जो हमने विदाउट ओपनिंग सेव किया है। सो ये एक डिफरेंस है क्वालिटी में। सो जब भी आपको कोई भी इमेज लेना है गूगल से या कहीं से भी इंटरनेट से, सो आप उसके ऊपर क्लिक करो और फिर उसको आप सेव करो। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कैसे आपको इमेजेस सेव करनी है। सर, डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? No, madam. No. गो अहेड। Yeah. अभी हम देखेंगे When you click the share, there will be some desktop. Yes. I am not, yeah, so I will next time I'll see. Now it is open. I'll be in this window only for some time. ठीक है, तो हमने देखा कि एप्पल फ्रूट हमें देखना था, इमेजेस में गए, कैसे उसको सेव करना है। तो ये तरीका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आज हम कुछ नया सीखेंगे
कैसे ये सर्च आपको और सिस्टमैटिक बनाना है और इजी बनाना है और फास्टर बनाना है, कैसे हम इफेक्टिवली सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो इमेजेस का लाइन यहाँ पे टूल बार है, उसमें टूल्स ऑप्शन है और एक आप नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट्स जैसे एक्सप्लेन हो रहे हैं, तो बाद में आपको आसानी होगी समझने में और प्रैक्टिकली करने में असाइनमेंट्स जो भी है। सो ये टूल्स का ऑप्शन आप देख रहे हो, मैं ये टूल्स पे क्लिक करती हूँ। आज हम देखेंगे कि ये टूल्स के ऑप्शन में क्या क्या है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आज हम एक्सप्लोर करेंगे। सो मैंने क्लिक किया टूल्स पे, क्लिक करते ही आप देख रहे हो यहाँ पे और एक टूल बार आ गया है। टूल्स पे मैंने क्लिक किया, सेटिंग्स और उसके बाजू में ये टूल्स का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करते ही मुझे और एक टूल बार आया है जो साइज, कलर, यूजेस राइट्स, टाइप और टाइमर बता रहा है। आज हम देखेंगे कि इनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा सर्च और आसान बनाने में। अभी ये एप्पल का इमेज है, अगर मुझे साइज में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, एक सर्टन MB का ही साइज मुझे चाहिए, तो मैं साइज का ऑप्शन में जाके लार्ज, मीडियम और आइकन ये ऑप्शंस में सिलेक्ट कर सकती हूँ, इसमें मैं यूज कर सकती हूँ। सो मैं मीडियम, अगर मुझे मीडियम साइज का एप्पल चाहिए तो मैं मीडियम पे क्लिक करती हूँ। अभी आप देख रहे हो ये मीडियम ऑप्शन इधर हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब है कि आप आपका सर्च मीडियम साइज के एप्पल के लिए कर रहे हो और यहाँ पे जो इमेजेस है वो सब मीडियम साइज एप्पल्स दिखा रही है। सो ये एक टूल है जो आप यूज कर सकते हो। उसके बाजू में आप देख रहे हो कलर है। एप्पल जैसे जनरल आप सर्च करते हो तो देखे तो बहुत सारे रेड कलर के एप्पल्स आप देख रहे हो जनरली जो रहते हैं। अगर मुझे कुछ अलग टाइप या अलग कलर का एप्पल चाहिए, सपोज मुझे ग्रीन चाहिए, तो मैंने ग्रीन कलर पे क्लिक किया है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि सारे एप्पल्स जो है वो अभी ग्रीन कलर में है। हाँ, सो ये बहुत आसान हो जाता है अगर आप कोई स्पेसिफिक कलर ढूंढ रहे हो, जो भी आप सर्च कर रहे हो, कोई कार हो सकती है, कोई फ्रूट हो सकता है, कोई फ्लावर हो सकता है, तो उसमें आपको अगर स्पेसिफिक कलर चाहिए तो आप ये टूल इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जनरल में देते हो तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे ग्रीन एप्पल है, हाँ, या जो भी कलर आपको चाहिए। सो ये बहुत ही आसान और सिस्टमैटिक हो जाता है। अगर आपको और कोई कलर चूज करना है, पर्पल एप्पल आपको सर्च करना है तो आप पर्पल दे सकते हो। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका सर्च अभी बहुत स्पेसिफिक हो गया है। सो ये कलर का ऑप्शन है और जो भी कलर आप सिलेक्ट कर रहे हो वो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है यूजेस राइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट्स के बारे में हम सब जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कॉपीराइट फ्री हो या तो फिर आप उसको एट्रीब्यूशन दे आपने कहाँ से लिया है। सो आज हम कॉपीराइट्स फ्री इमेजेस ढूंढ रहे हैं। सो यहाँ पे ये ऑप्शंस है, लेबल फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो ऐसी इमेजेस आपके सामने आएगी कि जो आप रीयूज कर सकते हो फ्रीली और जो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो जरूरत पड़ने पर, जैसे ही आपको जरूरत है वैसे। सो ये अभी ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई इमेज लेते हो तो आप उसका कॉपीराइट फ्री है कि नहीं ये स्टेटस चेक करो, ताकि आगे आप अगर उसको इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई लीगल दिक्कत ना आए, लीगल इश्यूज कॉपीराइट्स के बारे में ना हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप चेक करके लो कि ये कॉपीराइट फ्री है कि नहीं है। लेबल फॉर रीयूज है, लेबल फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज विथ मॉडिफिकेशन। आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए अगर कोई इमेज इस्तेमाल कर रही हो जिसमें आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, तो आप इससे भी सर्च कर सकते हो कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास में इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो भी टाइप है आप उसको वो टाइप से सर्च कर सकते हो और आप यूज कर सकते हो। अभी कोई है वो बता रहा है कि लेबल फॉर रीयूज, तो आप इसको रीयूज कर सकते हो पर आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो राइट आपके पास नहीं है। तो आप कौन से टाइप की इमेजेस ले रहे हो आपको अवेयरनेस होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए,
ताकि आगे कोई भी आपको दिक्कत ना हो लीगली, क्योंकि आप ये इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप। टाइप में भी आप देख रहे हो क्लिपआर्ट है। अगर आपको क्लिपआर्ट में चाहिए इमेज तो आप क्लिपआर्ट पे क्लिक करो। आप देख रहे हो यहाँ पे आपने सर्च दिया है एप्पल, उसमें पर्पल कलर, मीडियम साइज, लेबल्ड फॉर यूज। सो ऐसे ही इमेजेस आएंगे जो सब क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं और फिर आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आपको कोई इमेज पसंद है उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, वो इमेज ओपन होना चाहिए अलग विंडो में, फिर उसमें सेव इमेज एज ऑप्शन आपको लेना है और फिर उसको आपको क्लिक करके अलग विंडो इधर अपीयर होगा। डेस्कटॉप पे अगर आपको चाहिए उसको जो भी नाम देना है, अभी मैं दे रही हूँ पर्पल एप्पल, तो आप उसको सेव कर सकते हो। सो ये सही तरीका है कोई भी इमेज सेव करने के लिए। तो और ये टाइम अनदर ऑप्शन है आपके पास, जो भी डाउनलोड लास्ट 24 आवर्स में हुआ है, लास्ट वीक में, अगर आप बहुत रिसेंट वाले ढूंढ रहे हो या तो आप 1 साल पुराने भी आपको चल सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप आपका सर्च कर सकते हो। सो ये टूल्स का ऑप्शन हमने एक्सप्लोर किया, जिसमें साइज, कलर, यूजर्स राइट्स, टाइप ऑफ इमेज आपको चाहिए और कौन से टाइम में आई हुई इमेज आपको चाहिए। सो ये सब डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका सर्च बहुत ही इजी, एफिशिएंट हो जाएगा और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सर्च कर सकोगे। सर, डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? No, madam. No. Go ahead. Go for Pixabay. ओके, तो अभी हम देखेंगे कि 2 वेबसाइट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो फ्री है, जिसमें आप इमेजेस ढूंढ सकते हो। गूगल तो है ही सर्च इंजन, बट कुछ वेबसाइट्स भी ऐसी है जो आपको फ्री इमेजेस दे सकती है। सो पहला वेबसाइट है पिक्साबे। आप नोट डाउन कीजिए, पिक्साबे नाम है ये वेबसाइट का। मैंने पिक्साबे यहाँ पे टाइप किया है, आप नोट डाउन करके लीजिए वेबसाइट्स कौन से हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री इमेजेस मिलेंगी। पिक्साबे मैंने दिया, फर्स्ट सर्च में आप देख रहे हो pixabay.com। ये जो वेबसाइट है ये आपको फ्री में इमेजेस और वीडियोस प्रोवाइड करती है। सो हम इसको आज एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या है, कैसे डाउनलोड करना है। pixabay.com नोट कीजिए प्लीज। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये नया विंडो आया है। यहाँ पे आप लॉगिन का ऑप्शन देख रहे हो, ज्वाइन का ऑप्शन देख रहे हो। आपको लॉगिन नहीं करना है, आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आप फ्रीली इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो। जो भी आपको यूज करना है, सपोज मुझे टाइगर का इमेज चाहिए तो मैंने यहाँ पे टाइगर टाइप किया है और मैं क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख रहे हो बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे ओपन हो गए हैं। फर्स्ट रो आप जो देख रहे हो 15% ऑफ, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये कमर्शियल है, इसको आप टच ना करें। ये पेड फोटोग्राफ्स है और इमेजेस है जो आपको खरीदने पड़ेंगे। सो ये पहला रो छोड़ के आप नीचे वाले रो में आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी इमेजेस है। जो भी इमेज आपको अच्छी लगी है, ये मुझे अगर अच्छी लगी उसके ऊपर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही वो ओपन हो जाएगी अलग से। आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे अलग से वो इमेज ओपन हो गई है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है इमेज के बारे में। आपको अगर ये डाउनलोड करना है तो यहाँ पे एक हरे रंग का आप देख रहे हो फ्री डाउनलोड करके लेबल है, उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो आप देख रहे हो यहाँ पे साइज, डिफरेंट साइज मेंशन हुई है। आपको जो साइज में चाहिए, अगर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यही साइज में चाहिए, इतना ही MB चाहिए, तो आप वैसे ऑप्शन के लिए जा सकते हो। फिलहाल मैं यही ऑप्शन जो यहाँ पे हाईलाइटेड है उसके लिए जा रही हूँ और मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रही हूँ।
जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे और एक वेरिफिकेशन आया है, आई एम नॉट अ रोबोट। सो आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करो। जैसे ही ये हरा टिक मार्क आ जाता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किया, आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे मेरे स्क्रीन पे वो इमेज डाउनलोड हो रहा है। और जैसे आपको बताया है, आप इसको बाद में ओपन करके जहां पे भी आपको रखना है, आप उसको कॉपी कर सकते हो। Madam, हाँ, यस सर। yeah, your screen is. Yeah, it is showing disabled for screen sharing. Post disabled participant No, screen no, I sharing. have given. I have given. Okay, now, yes, yes. When you click the share, no, you will get that desktop. You click the desktop. No option as desktop, sir. White board आ रहा है, iPhone आ रहा है, और अलग अलग ऑप्शन है। डेस्कटॉप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर यहाँ पे। Okay, you start sharing this. I just go ahead. Okay. सो ये इमेज आ गया है जो मुझे चाहिए था। उसके ऊपर राइट क्लिक करती हूँ, मैं कॉपी करके जहाँ पे भी मुझे ये कोई भी फोल्डर में रखना है इमेज, वहां पे मैं रख सकती हूँ। ओके, सो ये तरीका है पिक्साबे में जाके फ्री इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो। Sir, I want to share the screen again. Sir, screen sharing नहीं हो रहा है sir. Yes, no, no. You give share screen. You give share screen. Post disabled participant screen sharing आ रहा है sir. Yes, you don't. In last, you don't close that, madam. You are actually closing that window. You don't close that window. Okay. You just click that share screen. Share screen will be there. No. Okay. Share screen. Hello. அதேதான் நம்ம படபடப்பு तो हमने देखा पिक्साबे में जाके हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये एक वेबसाइट है। दूसरा वेबसाइट है CC सर्च, नोट डाउन कीजिए, CC सर्च creativecommons.org। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे CC search.creativecommons.org। सो ये एक और वेबसाइट है जो आपको फ्री में इमेजेस डाउनलोड करने के लिए मदद करेगा। हम देखेंगे ये वेबसाइट में क्या है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हो CC सर्च, और यहाँ पे एक बॉक्स आया है जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। सो अगर मैंने लायन टाइप किया है, यहाँ पे अलग अलग इमेजेस यहाँ पे आई हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको डाउनलोडिंग के लिए, और ये सब फ्री इमेजेस है। अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आपको एट्रीब्यूशन देना है तो आप दे सकते हो। लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्लिक करके यूज कर सकते हो इसको डाउनलोड करके। ओके, ये एक और वेब CC search.creativecommons.org जो आपको फ्री इमेजेस डाउनलोडिंग में मदद करेंगे। अभी हमने देखा 2 वेबसाइट्स हमने डिस्कस किए हैं जो आपको इमेजेस फ्री में डाउनलोड करने के लिए परमिशन है और आप यूज कर सकते हो। अभी हम म्यूजिक पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, साउंड्स कैसे डाउनलोड करने हैं फ्री वाले। तो पहला वाला वेबसाइट जो आपको साउंड के लिए मदद करेगा वो है बेंसाउंड। नोट कीजिए बेंसाउंड।
जैसे ही मैंने क्लिक किया बेंड साउंड, www.bensound.com ये वेबसाइट है जो आपको फ्री म्यूजिक डाउनलोड के लिए मदद करेगा। सो हम देखते हैं इस पे एक्सप्लोर करके ये कैसे है, वेबसाइट कैसे काम करता है, कैसे आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया bensound.com ये पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एट्रीब्यूशन देना है। जब भी आप लेते हो यहाँ से म्यूजिक, आपको एट्रीब्यूशन देना है, क्रेडिट देना है कि हमने ये म्यूजिक यहाँ से लिया है। ये आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं। डिफरेंट टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हो, फोक्स चाहिए, सिनेमेटिक चाहिए, कॉर्पोरेट चाहिए, अर्बन, जैज, रॉक। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक है जो अवेलेबल है इस पेज पे। और आपको जो भी टाइप का म्यूजिक चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है इसमें, मैं वापस बोल रही हूँ, दोहरा रही हूँ। अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट आपको एट्रीब्यूशन देना है, आपको क्रेडिट देना है कि हमने यहाँ से म्यूजिक लिया है। अगर ये म्यूजिक मुझे पसंद है, मैं प्ले करके देख रही हूँ कैसे है। प्ले बटन, अगर मुझे पसंद आया है मैं डाउनलोड पे क्लिक करती हूँ और आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है म्यूजिक। सो वहां से मैं कॉपी करके जहां भी मुझे वो यूज करना है, पेस्ट करना है, सेव करना है, मैं कर सकती हूँ। सो डिफरेंट टाइप्स है यहाँ पे, आप यूज कर सकते हो। bensound.com एट्रीब्यूशन देना है, ये आपको डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करेगा ये वेबसाइट। साइन अप की जरूरत नहीं है, अकाउंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आप इसको फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे जो है फ्री SFX। नोट डाउन कीजिए, freesfx.uk, freesfx.uk क्लिक करती हूँ मैं इसके ऊपर। freesfx.co.uk तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये पेज ओपन हो गया है। इस वेबसाइट के लिए आपको अकाउंट की जरूरत है, आपको ज्वाइन नाउ करना है, आपके डिटेल्स देने हैं। सो मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करती हूँ, एक विंडो यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको आपका नाम, सरनेम, ईमेल आईडी और जो भी आपको पासवर्ड देना है वो आप पासवर्ड दे सकते हो ताकि आप रजिस्टर हो जाओ इस वेबसाइट पे और आप यूज कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अग्री करते हो टर्म्स और रजिस्टर पे क्लिक करो। यहाँ पे मैंने ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही ज्वाइन नाउ क्लिक हुआ है ये विंडो अपीयर हुआ है जिसमें आपको आपके डिटेल्स भरने हैं और रजिस्टर पे क्लिक करना है। ओके, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा नाम आ गया है, उसका मतलब है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ क्योंकि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया है। तो मेरा नाम यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे जो भी टाइप का म्यूजिक मुझे चाहिए, आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कितने टाइप के उसमें म्यूजिक है। एक्वेटिक में आप देख रहे हो 5 टाइप के म्यूजिक अलग अलग है जो आप यूज कर सकते हो। साउंड इफेक्ट्स है, अगर आपको सर्च करना है, आपको पूरा लिस्ट नहीं पढ़ के देखना है, स्पेसिफिक कोई साउंड आपको सर्च करना है, सपोज मुझे रेन साउंड चाहिए तो मैं रेन टाइप करूंगी ये बॉक्स में और मैं सर्च करूंगी।
सो जैसे ही मैं सर्च करती हूँ यहाँ पे सेपरेटली मुझे सिर्फ रेन के साउंड्स लिस्ट होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से मुझे जो भी चाहिए मैं प्ले करके पहले देख सकती हूँ। जैसे ही मैं प्ले करूंगी ओके, सो जो भी आप सर्च दे रहे हो उसके हिसाब से आपका म्यूजिक यहाँ पे लिस्ट होगा। और अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो सिमिलर प्रोसीजर, डाउनलोड पे क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो म्यूजिक डाउनलोड हो रहा है और आप वहां से उसको यूज कर सकते हो। तो ये सेकंड वेबसाइट था, हमने देखा। पहले हमने बैंक साउंड देखा, फिर हमने फ्री एसएफएक्स देखा है। अभी हम कुछ सोशल मीडिया साइट्स भी है जो फ्री साउंड्स में आपको मदद करेंगे फ्री साउंड्स डाउनलोड करने में। पहले वाला है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, नोट डाउन कीजिए, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। जैसे ही मैंने सर्च किया है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, आप देख रहे हो यहाँ पे फ्री म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स है। यहाँ पे भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आप देख रहे हो लिस्ट डाउन हुए हैं। इसमें से आपको कौन सा टाइप चाहिए, जेनरे, मूड कौन सा चाहिए आपको, सैड चाहिए, हैप्पी चाहिए, काम चाहिए, जो भी टाइप का आपको चाहिए वो म्यूजिक आप उससे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंट्स भी, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का आपको म्यूजिक चाहिए, जो आपका सर्च बहुत ही इजी बनाता है। ड्यूरेशन, आपको छोटा ड्यूरेशन का म्यूजिक चाहिए, बहुत लंबा वाला चाहिए, वैसे हिसाब से। एट्रीब्यूशन भी अगर आपको मस्ट है, एट्रीब्यूशन यानी क्रेडिट देना है, बताना है यहाँ से ही लिया है, सो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाले म्यूजिक है और एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाले भी साउंड्स है। सो आप जो भी टाइप का म्यूजिक चाहते हैं आप यहाँ से सर्च कर सकते हो और उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। सो ये यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है। वैसे ही आपके पास और एक ऑप्शन है फेसबुक साउंड कलेक्शन, नोट डाउन कीजिए, फेसबुक साउंड कलेक्शन। सो फेसबुक साउंड भी आपको बहुत सारे फ्री साउंड्स डाउनलोड करने में मदद करेंगे। मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे साउंड्स यहाँ पे भी अवेलेबल है और आप यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। सो आप देख रहे हो यहाँ पे भी सिमिलर ऑप्शन है जैसे हमने यूट्यूब में देखा। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में ऑप्शंस थे, कौन से टाइप, कौन से मूड के लिए चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए। सो ये ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप और देख सकते हो कि आपको कौन सा टाइप, फोक चाहिए, फेस्टिवल का कोई चाहिए, लैटिन में चाहिए, कौन से मूड के लिए आपको चाहिए, स्कैरी चाहिए, ब्राइट चाहिए, हैप्पी चाहिए, रोमांटिक म्यूजिक चाहिए। सो वैसे आप उसको एक्सप्लोर करके आप जो भी टाइप का आपको चाहिए, सो फीमेल मेल वॉइस में चाहिए, विदाउट वोकल्स चाहिए, सो वो आप सब सिलेक्ट करके फिर वैसे ही म्यूजिक आपको यहाँ पे लीज डाउन होंगे। और यहाँ पे आप एक डाउनवर्ड एरो देख रहे हैं, प्ले के लिए एक बटन है जो आप सुन सकते हैं म्यूजिक को। सो आप सुनने के बाद डिसाइड करोगे आपको डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड के लिए बटन है यहाँ पे। सो आप उसके ऊपर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली वो म्यूजिक, वो जो साउंड है वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। फिर डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप उसको कॉपी कर सकते हो, सेव कर सकते हो आपको जहाँ पे चाहिए या जहाँ भी इस्तेमाल करना है। सो ये सब जो हमने अभी देखा वो साउंड के लिए था।
पहले हमने इमेजेस के लिए देखा, फिर हमने साउंड के लिए देखा, कैसे फ्री साउंड्स एंड इमेजेस हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स हमने देखे जहां से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टीचिंग लर्निंग में या जो भी प्रोफेशन आपका है उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, Yes, madam. anything else you want me to recap again? Yeah, yes, madam. That free SFX, you Free can recap on. Yes, free SFX. ओके, सो साउंड के लिए freesfx.co.uk ये एक वेबसाइट है जो आपको बहुत सारे साउंड्स फ्री में अवेलेबल कराता है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नोट डाउन द वेबसाइट freesfx.co.uk। सो इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। इसके लिए आपको अकाउंट करने की, खुद का यहाँ पे अकाउंट होने की जरूरत है, आपको रजिस्टर करना है। बाकी सब वेबसाइट्स पे अगर आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आप फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैंने अभी दिखाया भी आप कैसे आपका पूरा इंफॉर्मेशन, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ज्वाइन नाउ। अभी यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया है। सो अगर आपका अकाउंट नहीं है, ज्वाइन नाउ ऑप्शन इसमें रहेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा आपका नाम, सरनेम, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये पासवर्ड आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं रहेगा, आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हो, जरूरी नहीं है आपका पासवर्ड ही देना है। आपका पासवर्ड अलग से कोई भी आप दे सकते हो, खाली इस वेबसाइट के लिए। हाँ, सो क्रिएट करने के बाद आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे म्यूजिक है अवेलेबल। अगर आपको टाइम नहीं है सब एक्सप्लोर करने में और ढूंढने में, क्योंकि बहुत सारे इधर है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके, अगर मुझे ट्रेन साउंड चाहिए, सो मैं ट्रेन यहाँ पे टाइप कर रही हूँ और मैं स्पेसिफिक सर्च कर रही हूँ ओनली ट्रेन साउंड के लिए। सो जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे ट्रेन के साउंड्स लिस्ट डाउन हुए हैं। सो मैं सुनती हूँ अभी कौन सा वाला मुझे चाहिए। मैंने क्लिक किया है यहाँ पे प्ले बटन। अभी ये प्ले हो रहा है। सो आप इसको सुन सकते हो। और अगर आपको ये पसंद है, आप इसी के लिए ढूंढ रहे थे, तो आप डाउनलोड ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हो। सो जैसे ही आप डाउनलोड ऑप्शन क्लिक करते हो, आप देख रहे हो ये साउंड यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हुआ है। सो वहां से फिर डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप उसको सेव कर सकते हो कोई भी फोल्डर में, या जहाँ पे भी आपको वो साउंड इंसर्ट करना है। सो आप ये कर सकते हो। उसके बाद हमने और दो वेबसाइट्स देखी है, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी और फेसबुक साउंड कलेक्शन, जो आपको बहुत सारे फ्री साउंड्स, फ्री ऑडियोज वहां से डाउनलोड करने के लिए परमिशन देते हैं और आप उसको फ्रीली एट्रीब्यूट भी, आप उसको एट्रीब्यूशन भी दे सकते हो, देना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि जो भी जिसने भी ये साउंड्स क्रिएट किए हैं उनको ये मोटिवेशन होता है कि लोग हमारा साउंड यूज कर रहे हैं और हम और मोटिवेशन भी होता है, जैसे हम लोग को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमको अच्छा लगता है किसी ने हमें एक्नॉलेज किया, तो वैसे ही आप कर सकते हो। So you want me to again explain YouTube? Let me ask the participants to make them doubts. Dear participants, you can post your queries in the chat box. So this is the session that
We need some, actually, we as a teachers, we need some sounds, we need some images, we need some things, because as a teacher, we need to create our own contents, our own brochures, our own e-contents. So for that sake, we need some images. Where to get the free images? That's what the session today. And at the same time, where to get the free sounds. That's what the thing. To sum up with this thing, I will you can post your queries there, and we will give you a page also. We will share you in the group. We will share you everything in the group, that what are all the sites for images, what are all the sites for the sounds. We will share you it in the group. Definitely we will share it in the group, no doubt. And for this today's session, you have to you just download a Lotus, for example, any Lotus image of blue color, and a sound. For example, madam told a train sound. You make a train sound, you just save it in your Google Drive as a folder, and you can share your Google Drive link through the Google form, which we will be provided you within this evening. Before 6 o'clock, we will provide you this recorded video as well as the Google Drive, Google form for the assignment. And to sum up once again, these things will be told by our Mr. Iral, one of the organizer of our UTA. He will be telling you in Hindi, sir. Yeah, thank you, sir. Sir, please permit me to share my screen. Yes. Yes, you can. नमस्ते पार्टिसिपेंट्स। आज हमने देखा कि हमने जो पढ़ा है आज, उसके बारे में मैं आपको सच समअप कर रहा हूँ सिर्फ कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। सर, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes. This is the first thing that we have started. We had the first day where we started with. It is blur, I think so. Okay, just a minute. Is it clear now, sir? No, Sir, is it clear? Are you able to see the slide? No, I'm little blur. It gives yes. Now it's okay little. Yeah, it might be some internet issues. So this is what workshop is today. Was आज पहला दिन था जब हमने सीखा कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस और साउंड्स कैसे ले सकते हैं। हमने देखा सबसे पहले पिक्साबे, कृपया लिख लीजिए आप, pixabay.com वेबसाइट थी जहां से हमने पिक्चर्स लिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे हम बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बनाते, इमेज लेते हैं, तो वो क्या होता है, अगर वो कॉपीराइट फ्री इमेज हमने नहीं लिया है तो जिसका भी इमेज है वो हम पे क्लेम कर सकता है, वो हमसे रॉयल्टी मांग सकता है। इसीलिए हम जब भी कोई भी इमेज ले, हमें ये ध्यान रखना है कि हम रॉयल्टी फ्री इमेज ले। इसके लिए हमने आपको बताया pixabay.com, ये पहली वेबसाइट थी। उसके बाद हमने बताया था आपको CC Search creativecommons.org, ये दूसरी वेबसाइट थी। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, ये दोनों वेबसाइट थी जहां से हमने पिक्चर्स लिए थे, रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स। जैसे कि मैडम ने आपको बताया, पहली लाइन जो है वो रॉयल्टी वाली इमेजेस है, वो हमें नहीं लेनी है। जो नीचे वाली इमेजेस है सिर्फ वही इमेज हमें लेनी है। ये थी इमेज की बात। उसके बाद हमने देखा कि हमें साउंड भी चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए, तो साउंड कैसे ले सकते हैं, तो ये आ गया अपना freefx.co.uk। ये पहली वेबसाइट थी जहां से हमने साउंड लिया था। और यहाँ कृपया ये ध्यान रखिए कि हमें इस पे रजिस्ट्रेशन कराना है। जो यहाँ पे ज्वाइन नाउ का बटन दिख रहा है आपको, उसे क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है, साइन अप करना है। आप गूगल तो हर कोई यूज करता है, तो आपको पता ही होगा कि कैसे साइन अप करना है। बट एक बात ख्याल रखें, अपना जीमेल का या किसी भी मेल का पासवर्ड ये क्रिएट करते वक्त मत डालिए, कोई अलग पासवर्ड बना लीजिए। तो यही वेबसाइट थी जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना था। बाकी की जो वेबसाइट थी जहाँ से हम साउंड ले सकते हैं वो ये रही सब, bensound.com और sound.com, freefx.co.uk, youtube.com audio library और facebook.com sound collections। तो ये सब थी जहाँ से हम आवाज ले सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे प्रेजेंटेशन में हम आवाज देना चाहते हैं लेकिन हमारे पास आवाज ही नहीं है, तो गूगल है अपने पास, गूगल कीजिए, ये वेबसाइट को रेफर कीजिए और आपको जो चाहिए वो आवाज आप आराम से पा सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज एंश्योर कि जब भी आप कोई भी इमेज दे तो क्रेडिट दे, जहां से आपने लिया वहां पे आप क्रेडिट दे सकते हैं।
जैसे आपके freefx.co.uk में से साउंड लिया है तो एकदम नीचे लिख दीजिए कि भाई हमने ये साउंड यहाँ से लिया है, तो वो भी जब लेना चाहे तो उन्हें भी मिल सकता है। तो ये सब चीजें हमने जो आपको बताई वो इसलिए बताई ताकि ये लॉकडाउन के टाइम में जब आप अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप अपना प्रेजेंटेशन जो बनाए वो अच्छा रहे, सही मायने में बन सके। श्रीनी सर, you can take it further. Yeah, you tell them that Google form will be. सॉरी। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने आज पढ़ा है उसी के बारे में आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं। हर रोज आपको जो जो सिखाया जाएगा उसी के बारे में आपको असाइनमेंट करने हैं। ये असाइनमेंट्स करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा आपके हर एक के व्हाट्सएप अकाउंट में। आज शाम से पहले ये गूगल फॉर्म का लिंक आ जाएगा। ये गूगल फॉर्म में आपको जो प्रोडक्ट बताई जाएगी वही प्रोडक्ट आपको ये गूगल लिंक में पेस्ट करके हमको भेजनी है, जिसका इवैल्यूएशन होगा और जिसके बेस पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये असाइनमेंट्स देने के लिए आपके पास मौतल है कल शाम को 6 बजे तक। जैसे कि आज जो आपको सिखाया, कल शाम को 6 बजे तक आपको हमें ये आपका प्रोडक्ट बना के हमें भेजना है। ये असाइनमेंट में ही भेजना है और ये असाइनमेंट का लिंक आपको आज शाम को 6 बजे तक, मतलब हर रोज शाम को 6 बजे तक आपको ये गूगल फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको लिंक देनी है। दूसरी चीज, हर रोज शाम को यानी कि रात को 8 से 9 के बीच में आपका व्हाट्सएप ग्रुप को खोल दिया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि उसमें सिर्फ एडमिन ही पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन 8 से 9 के बीच का टाइम ऐसा रहेगा जहां पे आप सब लोग अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। कृपया ये बात का ध्यान रखें कि आप क्वेरी के अलावा कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ दिक्कत आ रही है कि ये कैसे करना है, उसके बारे में आप पोस्ट कीजिए। जो भी एडमिन होगा आपके ग्रुप का वो आपको जवाब देगा, या फिर आप में से जो कोई ये जानता है उसका जवाब दे सकता है। तो इस तरह हम जो भी सीख रहे हैं उसको हम प्रोडक्ट बना के देंगे तो हमें भी पता चलेगा कि जो हमने सिखाया वो आप सीख पाए कि नहीं। दूसरा, अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो हम आपको मदद कर सकते हैं। ये 5 दिनों तो हम साथ ही है, तो हम आपको मदद करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाए। और जब हम आपको सर्टिफाई कर रहे हैं कि इसको ये प्रोडक्ट आती है तो हमें ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम देखें कि आप ये कर पाते हैं कि नहीं। इसीलिए हमने ये सब असाइनमेंट्स डिजाइन किए हैं। कृपया ये असाइनमेंट्स हमें गूगल फॉर्म के द्वारा भेज दीजिए और आपका जो भी दिक्कत है, जो भी डिफिकल्टीज आ रही है बनाने के लिए, उसे 8 से 9 के बीच में व्हाट्सएप में पोस्ट कीजिए, हम उसका जरूर जवाब देंगे। Anything else, sir, remaining to talk about? No, sir. Thank you. It's enough. Yeah. I guess we are already through with it for today, sir. Yeah, let me conclude it. Yeah, sir. Sure. I will tell them that within today evening, as sir told, we will give you the Google form. It is mandatory to submit all the assignments for the certificate. It is mandatory to submit all the assignments. 5 assignments आप submit करना चाहिए to get the certificates. To get the certificates, you have to submit all the 5 assignments. That is the thing. Once again, we will you just open the Google form. आप Google form open कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या assignment वो उस पर है, वो आप देख सकते हैं। फिर आप Google आ सकते हैं, वहां पर आप क्या assignment है, based on that you can do the thing, whether you can download the sound or you can download the image and save it in the Google Drive. आप वो Google Drive पर सेव कर सकते हैं, वो Google Drive लिंक आप वो पेस्ट कर सकते हैं वो Google फॉर्म पर। That's all the thing. Let me conclude the meeting officially. Okay, sir? Iral sir? Yeah. Sure, sir. That's all the thing. And आप 8 to 9 आप the group will be open. आप आपकी डाउट क्वेरीज आप पोस्ट कर सकते हैं। हमारा रिसोर्स पर्सन्स ऊपर आएगा, आपके लिए वो क्वेश्चंस पर है, दे विल आंसर यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, बट प्लीज बी स्पेसिफिक दैट आज का दिन के लिए आप क्वेश्चन पूछना चाहिए। we will tell you everything based on the today's topic. The discussion will be on today's topic. That's it. सर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको जो भी दिक्कत आज के बारे में हुई है उसका क्वेश्चंस आज ही पूछ लेना, आज जवाब देंगे, कल के लिए कल का जवाब देंगे। So it is better that we finish today's part today. Thank you. Let me officially conclude the meeting. Thank you for all the participants. Thank you very much. Thank you, Mrs. Cinderella Madam, for your wonderful presentation. Thank you once again. The
what are the questions in that assignment. You just open the Google Form assignment. In that Google Form assignment, you will there the specification of the assignments will be mentioned there. You tell that one, sir. Hiral sir. या जब भी आप शाम को गूगल फॉर्म खोलेंगे उसमें बताया होगा कि आपको असाइनमेंट में क्या देना है. जो भी असाइनमेंट है वो गूगल फॉर्म में ही लिखा होगा कि आपको आज क्या बना के भेजना है. वैसे क्या होता है कि आज जो आपने सीखा उसी के बारे में आपको प्रोडक्ट करके बनाना है. जैसे आपने इमेज देखा तो आप अभी से